جو آپ نے ہمیں دیا ہے یہ آپ کے فضل کی بدولت ہے، یہ آپ کا ترس ہے، شفقت ہے کہ ہم زندہ ہیں اور آج صبح تیرے کلام کو سننے کے لیے تیری حضوری میں ہیں۔ ہمیں فضل دے کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں کے اندر ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑا انقلاب بن سکے اور اس سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ بائبل کو کھولیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ ہمارا ٹیکسٹ وہی ہے جس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ دوسرا خط ہے مقدس تیموتھیوس کے نام، رسول اعظم نے لکھا ہے۔ یہ خط اس وقت لکھا گیا جب رسول دوسری دفعہ جیل میں تھا۔ پہلی دفعہ جب رسول کو جیل ہوئی اس وقت اس نے وہاں سے 4 خطوط لکھے جنہیں ہم پریزن لیٹرز کہتے ہیں۔ ایسی تحریریں، ایسے خطوط جو رسول نے جیل سے لکھے، اور تقریباً 60 AD میں جس کا احاطہ اعمال کی کتاب کرتی ہے۔ اعمال کی کتاب کی جو ٹائم لائن ہے، جو پیریڈ ہے، وہ 30 سال کا ہے، اور اعمال کی کتاب کا جو لاسٹ باب ہے، چیپٹر ہے، اس میں رسول روم کے اندر نظر بند قیدی کے طور پر ہے، اور اس نے پھر فلپی کے خط کے اندر ایک امید کا اظہار کیا کہ میں جلد آؤں گا اور میری تمہارے پاس آنے کی آرزو ہے، اور خداوند نے اس کی دعا کا جواب دیا، اور جو رسول تھا وہ روم سے رہا ہو گیا۔ اور تقریباً 64 AD کے اندر جب نیرو ایمپرر تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے روم کو آگ لگا دی، اور تقریباً 7 سے 9 دن تک روم جلتا رہا۔ اور کتابیں کہتی ہیں ہسٹری کی، جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ کہتے ہیں نیرو کو میوزک سے بڑا ہی اشتیاق تھا، بڑی محبت تھی، اور روم جل رہا ہے، اور نیرو دا کنگ، دا ایمپرر، وہ اپنی بانسری بجا رہا ہے۔ اور تقریباً 7 سے 9 دن، کیونکہ مختلف کتابوں میں کوئی 9 دن کہتی ہے، کوئی 7 دن کہتی ہے، تو اس لیے 7 سے 9 دن کے اندر اس آگ نے روم کے 3 حصوں کو جلا دیا۔ اور جب پبلک نے زور دیا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، تو جو شواہد ہیں وہ نیرو کے خلاف اٹھے، تو پھر اس نے اپنے سازشی ذہن سے یہ الزام کرسچنز پر ڈال دیا، اور کہا گیا کہ جو مسیحی ہیں ان کو قتل کیا جائے، انہیں جیلیں دی جائیں، انہیں ستایا جائے، انہیں ایذا دی جائے، انہیں تنگ کیا جائے، کیونکہ آگ انہوں نے لگائی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو شاطر منصوبہ ہے وہ نیرو کا ہے۔ اور پھر پول کو کہتے ہیں، پول بھی نیرو کے ہتھے چڑھ گیا، اور چونکہ پول کو مار نہیں سکتے تھے رومی ہونے کی وجہ سے، اس لیے پھر اسے قید میں رکھا گیا۔ ہم اس بات کے لیے بھی
खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने उसकी शहरियत को इस्तेमाल किया। और जो आखिरी खत है रसूल का वो दूसरा तीमुथियुस है। और इसके बाद तकरीबन 67 एडी के अंदर मसीह यीशु के तकरीबन 37 साल बाद ये खत लिखा गया है। और इसके अंदर 4 अबवाब हैं और इन चारों अबवाब के अंदर रसूल अपने रूहानी फर्जंद से जो रूह के तुख्म से पैदा हुआ इसकी मिनिस्ट्री के अंदर, और इसका डिसाइपल था, फिर डिसाइपल एक लीडर के अंदर बदल गया और अब ये लीडर इफिसस चर्च का पास्टर है और बाद में इसे इसी चर्च का बिशप भी बनाया गया। और तकरीबन 67 एडी के अंदर रसूल का सर कलम कर दिया गया। जब रसूल का सर कलम कर दिया गया तो इससे पहले के सर कलम होता, उसने इस खत के अंदर बड़ी अहम बातें लिखी हैं। और इस खत को पौल का, हम पढ़ रहा था, इस खत को पौल का टेस्टामेंट कहा जाता है। टेस्टामेंट से मुराद रसूल की शहादतें इसमें नसीहत के तौर पर उसके रूहानी फर्जंद को लिखी गई हैं। और हम पहले बाब की 3 आयत से 7वीं आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। आपने गौर से सुना है। और इसका जो पस मंजर है वो यही है कि रसूल इस वक्त जेल में है, क्रिश्चियनों पर इज़हार-ए-रसानी हो रही है। और इस कंडीशन के अंदर मैं थोड़ी सी बात बता के फिर हम पढ़ेंगे। उस वक्त जो मसीही थे उनको कत्ल किया जा रहा था और तरह तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था। और फिर जब इस सारे पस मंजर को देखा पौल ने, तो उसने ज़रूरत महसूस की। और इस खत को बटौन भी कहते हैं कुछ खादमीन, कि ये जो खत है ये असल में रसूल का अपनी खिदमत को अपने रूहानी फर्जंद के स्पुर्द करना है। तो इस मंजर के अंदर हम कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, जो एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। तो उस वक़्त इमेजिन करें जब ये ख़त लिखा गया तो उस वक़्त ईमानदारों मुक़द्दसों के क्या हालात थे। तो आए हम पढ़ेंगे 3 आयत से दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, 3 आयत से 7 आयत तक। और इसमें रसूल बात कर रहा है और इसमें लिखा हुआ है, जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूं, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिलानागा तुझे याद रखता हूं और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूं, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी मां यूनिके रखती थी। और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह
دی ہے۔ آمین آمین۔ آج ہم بات کریں گے فیئر پہ، دہشت۔ جو لفظ یہاں پہ دہشت ہے، جو ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں، گریک لینگویج کے اندر یہ صرف ایک لفظ ہے، اور نئے عہد نامہ کے اندر یہ لفظ صرف ایک دفعہ بائبل میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے۔ اور میں پہلے بھی بتا رہا تھا، حالات ٹھیک نہیں تھے، ان میں خوف تھا۔ ایسے بھیانک حالات ہوں اور خوف نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے حالات میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے، لوگ گھبرا جائیں، یہ عام سی بات ہے۔ لوگ ڈر جائیں، یہ معمولی بات ہے۔ اور رسول جس کنڈیشن میں ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ جو رسول ہے، اسے نہ صرف جیل دی گئی ہے، بلکہ اس کے اپنوں نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور کلام کہتا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ آسیا کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے، انہوں نے رخ موڑ لیا۔ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ چرچ مشکل میں سے گزر رہا ہے۔ اور پھر پول اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے شرمندہ نہ ہو، میں مسیح کے داغ اپنے جسم پر لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اور پول اپنے فرزند کو، جو روح میں اس کا بیٹا ہے، جسمانی یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، روح میں اس کا فرزند ہے، اور اس سے پھر پول کہتا ہے کہ سارا جو آسیا کا صوبہ ہے یہ مجھ سے پھر گئے ہیں۔ میری مصیبت کے وقت میں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن شاگرد ہوتا ہے۔ ایک عام چرچ کلیسیا کے ممبر میں اور شاگرد میں فرق ہوتا ہے۔ مسیح کی کلیسیا کو یہ حکم ہے کہ شاگرد بنائے، ممبر نہ بنائے۔ ممبر اپنے وقت کا ہوتا ہے، رکن اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ جب دل چاہا وہ چرچ آئے گا، جب دل چاہا وہ آپ کی بات مانے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے، چیزیں ٹھیک۔ جب ممبر کی ایموشنز سچائی کی دار سے ڈیمیج ہوتے ہیں، انہیں نقصان پہنچتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے، وہ پھر جاتا ہے۔ رسول نے آسیا کے اندر کلیسیائیں قائم کی ہیں۔ اس نے مسیح کی پہچان انہیں دی ہے۔ مسیح کے کلام کا تخم اس نے بویا ہے، اور لوگ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن رسول سے آسیا کے لوگ پھر گئے ہیں۔ کوشچن ہے، اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کلیسیا میں شاگرد کے طور پر آتے ہیں یا ایک رکن کے طور پر؟ آپ خدمت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کس لیے کلیسیا کا حصہ ہیں؟ جو رکن تھے انہوں نے منہ موڑ لیا، اور یہاں تک رسول نے نام بھی آگے لکھے ہوئے ہیں، جن میں فوگلس اور ہر مگونس ہیں۔ خدا پھر آگے وہ وفادار آدمی کا بھی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ پھر گئے ہیں۔
इन्होंने मुंह मोड़ लिया है। जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी मर्जी के होते हैं, शागिर्द जो होते हैं वो कीमत अदा करते हैं। निजात मसीह की मुफ्त है, मसीह का शागिर्द होना मुफ्त नहीं है। मसीह यीशु की निजात का जो काम है ये मुफ्त है। मसीह का शागिर्द होना मुफ्त नहीं है, इसकी कीमत है और ये अदा करनी पड़ती है। अक्सर मेरे ذہن के अंदर कुछ सवालात उठते हैं, क्या मसीह होने का मतलब ही दुखों में से गुजरना है? अक्सर ये बात मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मेरा ईमान इसे समझता है। जो बातें मेरे इल्म से समझी नहीं जाती वो मसीह में ईमान को समझ आती हैं। आमीन। और ये कंडीशन है पॉल की, रसूल की, और मैं भी तिमोथियस की हो। तिमोथियस भी घबराया होगा क्योंकि चर्च इस आसानी में से गुजर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर चर्च मजीद मुश्किल हालात में से गुजरेगा। इसलिए एक रुकन की स्पिरिट को अपने से दूर करें और शागिर्द की स्पिरिट को अपनाएं और दुआ करें, खुदावंद मुझे शागिर्द का सा दिल बख्श दे, मुझे शागिर्द की सी जुबान दे दे, मुझे शागिर्द का दिल दे दे। मेरे पांव शागिर्द के से हो, मेरी सोच एक शागिर्द की सी हो, ताकि मैं उस बटन को, उस लीडरशिप को आगे लेकर जाऊं जो मेरे स्पुर्द की है खुदावंद ने। आमीन। इसलिए शागिर्द होना एक कीमत का नाम है। मेंबर्स कीमत अदा नहीं करते। उनको क्या लगे कि चर्च की क्या हालत है इस वक्त, उनको क्या लगे कि चर्च में लोगों को लेकर आना है, उनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए रसूल याद करवाता है कि हमें दहशत की रूह नहीं दी गई। यहां पे जो लफ्ज़ दहशत है इसका मतलब है घबरा जाना, घबराहट, हिम्मत कम पड़ जाना, लैक ऑफ करेज इसे कहते हैं। इखलाकी जुर्रत का कमजोर हो जाना। एक और इसका मतलब है, इसका मतलब होता है जब आपके अंदर से अज़म खत्म हो जाए। आप कोई काम को करना चाहते हैं और आपके अंदर एक अज़म है, एक इरादा है और आप करना चाहते हैं, लेकिन दहशत आ गई, उसने आपको घेर लिया और आपकी जो अज़म की कुव्वत है वो कमजोर पड़ गई। इसको दहशत कहते हैं। बहुत दफा लोग आपको कहते हुए मिलेंगे हम ये करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। इसकी वजह है, इसकी वजह है कि उनका जो इखलाकी किरदार है, जुर्रत है, उसमें कमजोरी आ जाती है, वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर उस तरीके से मूव नहीं करते जिस तरह उन्हें करना चाहिए। और अक्सर आपसे लोग वादा भी करेंगे हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में नहीं करते। इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि उनकी इखलाकी जो जुर्रत होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इखलाकी जो कुव्वत होती है उसमें कमजोरी आ जाती है। और इसका एक और मतलब है कि ऐसी शर्मिंदगी, पौल ने कहा तो मुझसे शर्मिंदा ना होना। इस खत के अंदर बार बार लफ्ज आपको शर्मिंदा होना मिलेगा। और पौल ने कहा पहले बाब की 8वीं आयत के अंदर, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर। और इस लफ्ज का मतलब है ऐसा खौफ
جو شرمندگی سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہو لیکن آپ حالات کو دیکھیں اور حالات آپ کے خلاف ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے تعلق دار آپ کے خلاف ہوں, آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہوں, چرچ میں سے کچھ لوگ آپ کو پسند نہ کرتے ہوں. ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے, ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرے, ضروری نہیں ہر کوئی آپ کی اخلاقیات کی بات کرے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی طرفداری سے مراد کہ شاید وہ آپ کو پسند نہ کرتے ہوں. تو اس وقت یہ شرمندگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حالات کا تقاضا کچھ اور ہو اور آپ کچھ اور کرتے ہوں. اور اسی جگہ پر جو لفظ خوف ہے اس کا مطلب ہے شرمندگی محسوس کرنا. کیا کرنا؟ شرمندگی محسوس کرنا. خوف کی وجہ سے کیا کرنا؟ شرمندگی فیل کرنا, شرم آنا, چھپنا. کچھ لوگوں کو اتنی عادت ہوتی ہے, ان کی گفتگو بہت تیز ہوتی ہے, ان کا کام بہت سست ہوتا ہے. گفتگو میں آپ کا دل جیت لیں گے, اپنے کام سے شاید آپ کو وہ دکھ پہنچائیں. اور ایسا ہوتا ہے, یہ تجربے میں سے گزری ہوئی باتیں ہیں. اور اس لفظ کا مطلب ہے شرمندگی فیل کرنا. کب فیل کرنا؟ جب آپ کی عزت مسیح کے مشن سے بڑھ کر ہو جائے. مسیح کا مشن جب کمزور پڑ جائے آپ کی عزت کے سامنے. اور سیلف, اس کو کہتے ہیں سیلف کو دل کے تخت پہ بٹھا دینا. جب آپ کی اپنی باتیں, ضرورتیں مسیح کے مشن سے بڑی ہو جائیں, یاد رکھیں کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر دل کا اٹیک ہو اور درد محسوس نہ ہو, بندہ مارا جائے گا. جب درد محسوس ہوگا بندہ بچایا جا سکتا ہے, ڈاکٹرز ارینج کیے جا سکتے ہیں. لیکن سیلف میں کیا ہوتا ہے؟ خود غرض ہو جانا. اس لفظ کا مطلب ہے خود غرض ہو جانا. جب آدمی خود غرض ہوتے ہیں, سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, مسیح کا مشن کمزور پڑ جاتا ہے. ایماندارو, مقدسو, چرچ, اگر کوئی یہاں پر چرچ بیٹھا ہوا, میں لفظ کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. کلیسیا کا مطلب ہے مسیح یسو کے لوگ, اس کے خون سے دھلے ہوئے لوگ, اس کے مشن پر فوکس کرنے والے لوگ. اگر کوئی یہاں پر اپنے آپ کو چرچ کہتا ہے, کیمرے پر میری آواز سن رہا ہے, تو تیرے خود غرضی, تیری اپنی راست بازی سے بڑی بات یہ ہے کہ تم مسیح کے مشن پر فوکس کرے. تیری آنکھوں کا, تیرے ذہن کا, تیرے دل کا, تیرے اٹھنے کا, بیٹھنے کا مرکز مسیح کی صلیب ہے. اسے اٹھا اور اس کے اوپر کام کر. مسیح یسو نے ایک کلیسیا سے کہا, تو بڑے کام کر رہی ہے, تیرے پاس منصوبے ہیں, لیکن میرے خداوند کے حضور تیرے کسی کام کو پورا نہیں پایا گیا. اسے پورا کریں جو دیا گیا ہے. جب میں چرچ کی بات کرتا ہوں
मैं मुकद्दसों की बात करता हूं, मैं रूह से मामूर लोगों की बात करता हूं, मैं मसीह यीशु की सलीब के मुकाशफा की रोशनी में जिंदगी बसर करने वाले लोगों की बात करता हूं। क्योंकि बाइबल के अंदर चर्च की डेफिनेशन ये है, मसीह यीशु की मरकजियत में जिंदगी बसर करना। लेकिन तीमुथियुस को पौल कहता है, मुझसे शर्मिंदा ना हो। मुझसे शर्मिंदा ना हो। एक दफा एक खत लिखा गया, बाइबल के स्टूडेंट्स ने एक खत लिखा एक खादिम को। वो कमजोर हो गए उम्र के साथ और ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाले थे। उन्होंने कहा, नौजवानों ने खत लिखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप क्या करें, आप मरने से पहले अपने हाथ हम पर रखें और जो कुछ आपके ऊपर है वो हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दें, वो हमें दे दें। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, जब उस खादिम ने यह खत पढ़ा, उसने कहा, सारे तालिब इल्म, तुलबा, तालिबात मेरे मसा को चाहते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट मेरे उस स्टार्ट को नहीं लेना चाहता जिस पर दिन रात मैंने आंसू बहाए हैं, घुटने टेके हैं। मेरे जख्म है जो मसीह यीशु की खिदमत में वफादारी से करने पर जो मेरी सोल पर जख्म है, उन्हें कोई नहीं लेना चाहता। हर कोई मसा के पीछे भाग रहा है। और यही बात तीमुथियुस को याद करवाई जा रही है कि मेरे जख्मों से शर्मिंदा ना हो, शर्म ना कर। खौफ क्या है? What is fear? फियर एक वायरस की तरह है जो कीमती फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे डेटा को, कीमती चीजों को, फोटोज को, मेमोरीज को अपने अंदर संभाल कर रखता है। लेकिन वायरस क्या करता है? वायरस उस कीमती डेटा को खराब करता है, उसे तबाह करता है। और खौफ भी इसी तरह है। खौफ क्या करेगा? खौफ मोहब्बत को, कुदरत को, तरबियत को दबा लेगा। और खौफ में बाज दफा ऐसे फैसले किए जाते हैं जो हमारे करैक्टर्स पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। तो फिर इससे बचने के लिए हमें एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ता है। एक ऐसे एंटीवायरस की जरूरत होती है जो वायरस को शिकस्त दे। और वो एंटीवायरस क्या है? वो एंटीवायरस ये है कि जो कुछ दिया गया है उस पर नजर रखें, जो नहीं दिया गया उसकी तरफ ना देखें। जो कुछ दिया गया है उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करें, जो कुछ नहीं है उसकी तरफ देखकर उसको भी रोकने की कोशिश ना करें जो आपके पास है। जब हमारी नजरें उस पर लग जाती हैं जो नहीं होता, फिर उसको भी नुकसान होता है जो होता है। विडो ने कहा मर जाएंगे, एलिया ने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा आटा है, मटके के अंदर कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एलिया ने कहा दैट्स इट, यही चीज है जिसकी तुझे जरूरत है और यही काफी है उस मौजज़े के लिए जो खुदा तेरे हालात में करने वाला है। उसने कहा पहले मेरे लिए कर,
फिर मैं अपनी टाइट शुरू करूंगा। मेरा काम बड़ा मसरूफ है, इसलिए मैं चर्च नहीं आता। मुझे इस दिन भी बुला लेते हैं, इसलिए मैं कलीसिया में नहीं आता। ये सेकेंडरी बातें हैं, ये बाद में आने वाली बातें हैं। पहला दर्जा हर बात में ईमानदार की जिंदगी में मसीह का है। आमीन। खौफ क्या है? गौर से सुनिए, फिर हम दुआ करने लगे। खौफ क्या है? फियर एक ऐसा मुंह है जो नजर नहीं आता फिर भी बोलता है। खौफ एक ऐसी लैंग्वेज है जो नजर तो नहीं आती लेकिन खौफ फिर भी बोलता है। और खौफ की जो लैंग्वेज है ये नजर नहीं आती लेकिन मौजूद होती है। ये बोलता है। और जिस दुनिया में हम हैं इसमें बहुत आवाजें हैं और इंसान ईमानदार आवाजों से घिरा हुआ है। इसमें जुर्म की आवाज है, इसमें बदअनवानी की आवाज है, इसमें नाइंसाफी की आवाज है, इसमें माशरती जराइम की आवाज है, इसमें शहवत की आवाज है, इसमें मीडिया की आवाज है, फेसबुक की आवाज है, व्हाट्सएप की आवाज है, इसमें इंस्टाग्राम की आवाज है, इसमें और भी जो सॉफ्टवेयर्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं इनकी आवाजें हैं। इसमें बच्चों को अब्यूज किया जाता है, इसकी आवाज है। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग की आवाज है, जिसमें बच्चों को पढ़ने की बजाय उन्हें काम पर लगाया जाता है, उनसे बदसलूकी की जाती है, बदफेली की जाती है। और हम बाज़ औक़ात इन आवाजों के घेरे में आकर हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को उनके मिशन से रोकने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बच्चे जो 15 साल 16 साल के होते हैं हम उनकी शादियां कर देते हैं, क्योंकि हम आवाजों से घिरे हुए हैं। और खौफ बोलता है। मैं तजर्बे से बता सकता हूं कि खौफ की आवाज बाज़ औक़ात आपके मकसद की आवाज से भी बड़ी होती है। इसमें कमी की आवाज है। यहां पर शायद बैठे हुए हो, यहां पर बीमारियों की आवाज है, नाकामी की आवाज है, खतरात की आवाज है, रद्द किए जाने की आवाज है। इसमें आरामदेह जगह को ढूंढने की आवाज है, इसमें परसिक्यूशन की आवाज है, इसमें खाना ना होने की आवाज है, इसमें कुछ ना होने की आवाज है। और जिस दुनिया में हम हैं ये आवाजों से घिरा हुआ है। ये वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय वॉइसेस। और इसी तरह नोमी का वाक्या है। काल आ गया। नोमी ने क्या किया? उसने काल की आवाज को सुना और क्या हुआ? इनको नुकसान उठाना पड़ा। जब नोमी और उसके शौहर ने काल की आवाज सुनी तो क्या हुआ? इनके फैसलों की एबिलिटी जो थे वो खौफ की जद में आ गई। खौफ जब भी होता है आप कहेंगे मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन फिर आप नहीं करते क्योंकि आपने खौफ की आवाज को सुन लिया है। ये पैसा हो सकता है, माफी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हम पैसे की बात करें, किसी को माफ करना हो सकता है, इसकी भी आवाजें हैं। हमारी इज्जत नहीं रहेगी माशरे के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर। मेरी मूंछ जो मैंने खुद ऊंची की है, खुदा ने नहीं की, मैंने खुद ऊंची की है, ये नीची हो जाएगी। अगर तू माफ करेगा तेरी नीची मूंछ को खुदा ऊंचा करेगा। उसकी इज्जत बढ़ाना खुदा का काम है। आमीन। इसमें आवाजें हैं। हम जिस दुनिया में हैं इसमें आवाजें हैं। हो सकता है अभी तेरे पास काम नहीं है, तेरी माँ की आवाज है, पुरानी जगह पर चले जा। तेरे रिश्तेदारों की आवाज है, तेरी जरूरत की आवाज है,
उसी जगह पर चला जा जिससे तू निकला है। लेकिन खुदा की आवाज पर अगर तू कायम रहेगा तो नोमी की तरह तेरे बच्चे जाया नहीं होंगे, तेरे फैसले गलत नहीं होंगे, तू मुकाशफे की जगह से निकलकर मौत की जगह पर नहीं जाएगा। पहली बात है, नोमी और उसके शौहर के फैसलों को कैप्चर कर लिया, गिरफ्तार कर लिया खौफ ने। दूसरी बात, उन्होंने खुदा की फेवर की जगह को छोड़कर ऐसी जगह का चुनाव किया जो हरामजादों की जमीन है। हरामजादे, इस जगह के बानी हरामजादे हैं, लूत के तुख्म से पैदा हुए, गलत ताल्लुक से पैदा हुए। इन्होंने मुआब को चुन लिया, बुत परस्तों की जमीन को चुन लिया। और तीसरी अहम बात, फिर हम दुआ करेंगे, इन्होंने मुकाशफे की जगह को छोड़कर इन्होंने मौत की वादी को चुन लिया। ये खौफ की आवाजें हैं, ये रियल हैं, ये तेरे अंदर हैं। तेरा जहन तेरी जुबान से ज्यादा बोलता है, तेरी सोचें तेरी जुबान से ज्यादा बोलती हैं। और जिस हाल में तिमोथियस है, आप सोच सकते हैं, सिर्फ हमारी छोटी छोटी जरूरतें हमें खुदा के खिलाफ बाजुकात खड़ा कर देती हैं। और इसके पीछे खौफ होता है। खौफ ज्यादा बोलता है, ऊंचा आपकी आवाज से। एक पॉजिटिव खौफ होता है, मुस्बत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये मनफी खौफ है। आमीन आमीन। पहली खुसूसियत खौफ की यह है कि यह बोलता है, खौफ बोलता है। दूसरी खुसूसियत यह है कि खौफ देखता भी है। इन आंखों से ज्यादा खौफ देखता है। ये फितरती आंखें हैं, इनसे बढ़कर खौफ की आंखें हैं और वो देखती हैं। बेवा ने क्या कहा? बेवा ने क्या कहा? हम खाएंगे और मर जाएंगे। इस्राएलियों ने क्या कहा? समंदर पर थे, मिस्र से निकले, फैरो आ गया, फिरौन ने घेर लिया। और इस तो पहले के लड़ाई हुंदी, कहंदे कब्रां सन मिस्र च, मिस्र में कब्रें हैं, हमें वहां मरने देता तू हमें क्यों निकाल लाया है? तू हमें क्यों निकाल कर लाया है? मिस्र में अच्छी अच्छी चीजें हैं, प्याज है, खीरे हैं, तरे हैं, उनका टमाटर अच्छा है, गोश्त अच्छा है। खौफ देखता भी है। मैं तजर्बे से बता सकता हूं कि खौफ देखता भी है। भाई अशरफ, खौफ देखता भी है। हमें मिस्र में रहने देते, हमें मिस्र में गुलामी में रहने देते, जहां पर ना आपका नाम है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप कर्जदार हैं। जहां पर जब खादिम कलाम करता है, ये निजात पा जाते हैं। फिर खादिम कहता है ये मसीह की जिंदगी के तकाजे हैं। फिर कहते हैं आपने हमें क्यों वहां से निकाला, हमें भट्ठे पर मरने देते। खौफ देखता भी है। खौफ की नजर आपकी फितरती नजर से भी ज्यादा तेज है, क्योंकि खौफ की नजर का ताल्लुक किस जगह पे है? आपके माइंड के साथ है। और जो कुछ माइंड सोचता है वो हमारा माइंड देखता भी है।
انہوں نے کہا مصر میں قبریں تھیں، ایک ایسا خدا جس نے معجزے کیے، فرعون کو بھی شکست دی۔ ابھی تک انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو خدا ہمیں مصری پیلوٹوں کو مار کر نکال سکتا ہے، وہ خدا فرعون کو پھر سے شکست دے سکتا ہے۔ ذہنی آنکھیں اگر خوف کا شکار ہے تو یہ دیکھتا بھی ہے۔ آمین شمعون، خوف دیکھتا بھی ہے۔ اس کو اور ہم کھول سکتے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئیں کھڑے ہو جائیں اور 2 منٹ دعا کریں۔